get into the word now. चलिए बच्चे में जाएंगे अभी. Yeah. If you see in this world, देखिए अगर आप इस दुनिया में देखेंगे, there are people who are very super sensitive. ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं. They're super sensitive. वे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते They हैं. get hurt so easily. बड़ी आसानी से उनको ठेस लग जाती है. They get hurt at the drop of a hat. और देखिए मामूली सी बात पे उनको ठेस लग जाती है. You tell them something, अगर आप उनसे कुछ कहें oh, I tell you, they don't want to come for the next service. और आपको बताना चाहेंगे वे अगली सभा में नहीं आना चाहेंगे फिर. And not only in the church, even in the world, there are people in offices. There are so many people that are so sensitive. They get hurt so easily. और देखिए सिर्फ कलीसिया में ही नहीं, बाहर दुनिया में भी, ऑफिसों में भी देखिए ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिन्हें एक छोटी छोटी बातों में ठेस लग जाती है. Relationships are on the verge of breaking so easily nowadays. और इन दिनों में देखिए रिश्ते बहुत ही आसानी से टूटने की कगार पे पहुंच गए हैं. Marriages, शादियां, those boys and girls, those women, those men which said till we die, and today something little happens and they are on the verge of breaking up. और देखिए वे लड़के लड़कियां, वे स्त्री, वे पुरुष जिन्होंने कसम खाई थी, एक दूसरे से वायदा किया था कि मरने तक हम अलग नहीं होंगे, जुदा नहीं होंगे, आज छोटी छोटी बातों में बस रिश्ता टूटने की कगार पे पहुंच I'm जाता है. telling you, आपसे कहते हैं relationships which God brought you together, you just go apart because of some little hurt here and there. और वो संबंध, वो रिश्ता जो परमेश्वर ने साथ में लाया था, बस मामूली सी बात से टूटने की कगार पे पहुंच जाती है. There is a question sometimes. और कभी कभी सवाल उठता है, Why are people so hurt easily? और क्यों लोग बड़ी आसानी से ठेस खा लेते हैं? Why is it that people are hurt so easily today? और क्यों ऐसा होता है कि आज के जमाने में लोग बड़ी आसानी से ठेस खा लेते हैं? And people say, अरे क्या बोला मैंने, इतना क्या हुआ? You know, and people get hurt easily. Today we want to deal with that. और देखिए आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं. You see, people, आप देखते हैं लोगों, when people are super sensitive, जब लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं it is because they have been hurt in the past. तो ये इस वजह से है कि उन्होंने बीते समय में भी ठेस खाए हैं. And their emotions are bruised. और देखिए उनकी भावनाएं घायल हो गई. Maybe from the outside they look very nice with that makeup and all that foundation and those creams, और देखिए with the बाहर से- Ray-Bans. Hello, help me now. With the smart glasses. Come on now. अपने अच्छे They look so cool. और बाहर से तो बड़े अच्छे वो दिखते But हैं, inside, लेकिन अंदर से they are emotionally bruised. वे भावनात्मक तौर पे घायल हैं. That's why इसलिए you see people are so touchy today. और लोग बहुत ही भावुक होते हैं आज. People are so touchy. You know, one of my volunteers told me, Pastor, all I told this person is, why don't you go from this seat in front? And the guy stopped coming to church. और बताए किसी वॉलंटियर ने कि देखिए पासवान जी, मैंने सिर्फ महज इतना कहा कि इस कलीसिया इस कुर्सी से क्यों ना आप वहां पे बैठ जाएं. उस व्यक्ति को इतनी ठेस लगी कि Ask कलीसिया में people who are in the customer service industry. I'm telling you, it's so difficult nowadays. और देखिए आज के जमाने बहुत ही मुश्किल है. Ask businessmen, ask businesswomen, how they lose trusted clients just because of something little. और किसी भी देखिए व्यवसायिक जो से पूछेगा कि भरोसेमंद जो क्लाइंट जो थे बहुत ही छोटी छोटी बातों में बस निकल जाते हैं. Write this down. लिख लीजिए. There are two kinds of wounds mentioned in the Bible. दो प्रकार के घाव हैं जिनका बाइबल में जिक्र किया गया है या दर्ज किया गया है. There are many wounds spoken of. बहुत सारे घाव के बारे में बताया गया है. But there are two wounds that the Bible speaks about. लेकिन ऐसे दो घाव हैं जिसके बारे में बाइबल बताती है. The Bible speaks about physical wounds. बाइबल बताती है शारीरिक घावों के बारे में. Physical wounds. शारीरिक The घाव. Bible says in Isaiah 53, Jesus, he was wounded for our transgressions. और देखिए बाइबल ऐसा बताती है यशायाह का अध्याय 53 में यीशु हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया He गया, was beaten. उसे पीटा गया And by his wounds, और उसके घावों के द्वारा we are healed. हम जंगे हुए. Can I have a big hallelujah? अच्छा में हालेलुया सुन सकते हो. These are physical wounds. ये सब है शारीरिक घाव. These wounds can be seen. ये घाव दिखाई पड़ते हैं. How many of you following me right now? किधर समझ रहे हैं? And these wounds also are healed easily. और ये जो घाव है बड़ी आसानी से चंगे भी हो जाते हैं. Are you with me, sir? आप साथ में हैं अभी तक? People give emotional sympathy to you. अरे लग गया क्या? Oh, how sad. And you get sympathy. You can put a bandage and everybody knows you are wounded. और देखिए लोग भावनात्मक तौर पे आपको तसल्ली भी देते हैं. ओ तुम्हें लग गया क्या? फिर उसके बाद देखिए अगर आप पट्टी भी लगा लेते हैं तो सभी लोगों को दिखाई पड़ जाता है कि आप घायल हैं. People can come and do a signature also on your bandage. और देखिए लोग आकर आपके जो पट्टी पर जो है आकर अपने नाम का दस्तखत भी करते हैं. I was there. मैं वहाँ था. Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं? You know, somebody had a cast
cast. किसी का वो देखे ऐसा पट्टा जो And I saw so Plaster many लग गया। signatures. और देखे बहुत सारे उस पे दस्तखत हुए हैं। Says pastor, इतने लोगों ने visit करके गया मुझे. मतलब इतने लोग आकर मिल के गए। Hello, are you listening, church? सुन रहे हैं? You see, आप देखते हैं people can get emotional sympathy and all that stuff just by displaying a physical wound. और देखिए बस शारीरिक घावों को दिखाने के जरिए लोगों को जो है भावनात्मक तसल्ली मिल जाती है। अरे अरे बेचारा देखो ना कैसे. But you see, these are physical wounds. लेकिन आप देखते हैं ये सब शारीरिक घाव है। But then there are something the Bible speaks about is emotional wounds. लेकिन उसके बाद बाइबल कुछ बताती है जो दूसरे प्रकार के घाव वो होते हैं भावनात्मक घाव। How many of you are understanding me what I'm ये saying? तो समझ रहे हैं इस वक्त जो हम These are wounds which are on your soul or your spirit man. और ये वे घाव होते हैं जो आपके प्राण में होते हैं, आपके आत्मिक मनुष्यत्व पर होते हैं। These are scars which have happened probably when you are a small child. और ये ऐसे निशान के रूप में होते हैं जो शायद हो सकता है जब आप छोटे बच्चे थे तब ये घाव आपको मिला होगा। Maybe when you were, even before that, when you were in your mother's womb. या फिर हो सकता है उससे भी पहले जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे। These are scars that are left. You know, you are scarred on the inside. और ये उस तरह के निशान है जो आप पर रह जाते हैं। These are called emotional wounds. और ये सब कहलाते हैं भावनात्मक घाव। The Bible speaks about that. Let's get to the word right now. और चलिए बाइबल इसमें बताती है तो हम वचन में जाएंगे। I love the word. वचन बहुत My पसंद करते हैं। second scripture, go to Psalm chapter 23, please. और चलिए निकाले से भजन संहिता का अध्याय 30। You see, there is a provision for this healing. और देखिए इस चंगाई के लिए देखिए ऐसे मुहैया कराया जाना भी है। Verse 2, it says, और वचन में लिखा है He दूसरा वचन, makes me to lie down in green pastures. और वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। He makes me to lie down. और वो करता है ऐसा कि मैं बैठूं। Here is a person who needs rest. और देखिए यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्राम और आराम की जरूरत है। Hello, not just physical rest. बस शारीरिक इस चैन आराम नहीं। कभी कभी हम एसी में 20 डिग्री में भी सोने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है सर। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, कोमल कोमल तकिए पे सोए हैं लेकिन सर नींद नहीं आ रही फिर भी। क्यों पता है? There are emotional wounds. ऐसे भावनात्मक घाव है उसमें। जो आदमी जिसे पीटा है, मार मिली है, वो तो खराटे मार रहा है और तुमको एक भी शारीरिक वुंड नहीं है, आप सो नहीं पा रहे हो। You cannot sleep आप सो नहीं पाते हैं because there are emotional wounds. क्योंकि ऐसे भावनात्मक घाव है And वहाँ। look what the word of God says. He leads me beside the still waters. और देखिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलता है। The still waters. और सुखदाई पानी। And then verse 3 और says, फिर तीसरा वचन कहता है He restores my soul. वो मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। Everyone say, He restores my soul. Hallelujah. हालेलुया। You see, healing of the emotional wounds is a process. It's not an event. और आप देखते हैं भावनात्मक घाव के लिए चंगाई जो है यह कोई एक बार में होने वाली घटना जैसे नहीं, यह देखिए एक प्रक्रिया है। It's not like you just pray and it's over. और No. ऐसा नहीं होता कि बस आपने प्रार्थना किया और तुरंत उसकी चंगाई मिल गई। That's why इसलिए you need to regularly be in a place where the word of God is preached and where the spirit of God is moving. Can I have a good amen, आपको somebody? नियमित तौर पे वहां पर होना जरूरी है जहां पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है और जहां पर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। Healing of emotional wounds is a process, not an event. Event is a day. A process is regular. और देखिए भावनात्मक चंगाई जो मिलता है देखिए वो झटपट ऐसे नहीं हो जाता, प्रक्रिया के तौर पे होता है। Sometimes the devil is so wicked, he separates people from the very place that they would receive healing. और कभी शैतान देखिए इतना दुष्ट होता है कि वो लोग जहां पर कुछ चंगाई मिलती है वहीं से उनको अलग कर देता है। उसको पता है, शैतान को पता है कि यहाँ पर ये जाएगा तो उसे शारीरिक ही नहीं आत्मिक चंगाई भी मिलेगी, तो भैया इसको अलग कर दो उस जगह से। कितने लोग सुन रहे हैं? That is the scheme, not a plan, the scheme of the devil. और यही तो शैतान की देखिए साजिश है, योजना नहीं साजिश है। I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं। Many people, they have lost their call, lost their purpose in God because the enemy separated them from this restoration process. और देखिए बहुत सारे लोगों ने देखिए अपने विधान को किया कहे अपने बुल्लाहट को गवा दिया क्योंकि शत्रु ने उन्हें इस प्रक्रिया से ही अलग कर दिया। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं। So that's why let's go to Luke chapter 4. चलिए निकालेंगे लूका का चौथा अध्याय Let's go into the word. People, get into the word. और लोग वचन में जाएं। Luke chapter 4. लूका रचित सुसमाचार Look, चौथा one of अध्याय। the main missions of Jesus. और देखिए यीशु का एक मुख्य मिशन क्या था? Look, one of the main mission of Jesus. और यीशु का एक मुख्य मिशन देखिए यहाँ। Look what it says. The Spirit of the Lord
is upon me. प्रभु का आत्मा मुझ पर है। Why? क्यों? Because he has anointed me क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया to preach the gospel to the poor. कंगालों को सुसमाचार And सुनाने he के लिए। has sent me to heal the brokenhearted. और उसने मुझे भेजा है खेदित मन के लोगों को चंगा करने के लिए। Jesus healed the blind, Jesus healed the deaf, but he also healed those who are brokenhearted. और देखिए यीशु ने अंधों को चंगा किया, बहरों को चंगा किया, लेकिन वे लोग जो घायल दिल के थे, खेदित मन के थे, उनको भी चंगा किया। Even today, आज भी that ministry of Jesus has not stopped. और यीशु की वो सेवकाई रुकी नहीं है। Right now, that healing presence is flowing right now. इसी वक्त वो चंगाई की उपस्थिति बह रही Look है। at your neighbor, just look at your neighbor. बस अपने पड़ोसी को देखिए। Can you see their broken heart? क्या आप देख सकते हो कि टूटे दिल को? Probably not. संभव है नहीं। हंस रहे वो ही का परफ्यूम की खुशबू आ रही है, लेकिन उनके हृदय टूटे हुए हैं। कोई आमेन नहीं खाएगा। अच्छे कपड़े पहने, बाहर शायद गाड़ी भी खड़ी हुई लंबी चौड़ी या बाइक खड़ी हुई है, लेकिन उनके टूटे हुए हृदय को नहीं देख सकते हो सर, आप नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। स्माइल दे रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका हृदय टूटा हुआ है, broken hearted. You see, this is one of the ministries even today of Jesus. और देखिए यही यीशु की एक सेवकाई जो आज भी काम करती है। He has sent me. उसने मुझे भेजा है। God sent Jesus. Why? परमेश्वर ने यीशु को भेजा To क्यों? heal your broken heart. आपके टूटे दिल को चंगा I करने के believe लिए। tonight यकीन मानते हैं आज की रात many broken hearts are being healed. बहुत सारे टूटे दिल चंगे होने जा रहे Many हैं। relationships will be healed for the glory of बहुत सारे God. संबंध चंगे हो जाएंगे परमेश्वर की महिमा Lift के your लिए। hands and begin to pray and say, Lord, heal my wounds, O और God. चलिए अपने हाथ उठा प्रार्थना करें और समय कहे प्रभु मेरे घावों को चंगा कर I दे। want you to pray right now. और चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। Tonight there will be healing in आज marriages. की रात शादियों में चंगाई Tonight आएगी। there will be healing between parents and children. माता Hallelujah. पिता और बच्चों के संबंध में चंगाई I आएगी। believe there will be healing between your family members. यकीन मानते हैं कि आज आपके परिवार के लोगों के बीच में चंगाई आएगी। अपने मुंह को खोलिए मेरे भाई, अपने मुंह को खोलिए मेरी बहन और बोलिए प्रभु तेरी चंगाई हर एक पर बहने दे। Hallelujah. अपने मुंह को खोलें, Begin to बोलिए pray. प्रभु तेरी चंगाई हर एक पर बहने Begin दे। to pray. Somebody raise your hands. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाएं। Some prayer warrior raise your hand and your voice and begin to pray. और कुछ प्रार्थना योद्धा अपने हाथों को उठाएं, आवाज ऊंचा The बुलंद Lord's करके healing प्रार्थना करें। presence is flowing. प्रभु की चंगाई की उपस्थिति बह The रही Bible है। says He is the same yesterday, today, and forever. और बाइबल कहती है कि वो कल आज और युगानुयुग If God जैसा healed the brokenhearted then today even He's going to heal the brokenhearted. परमेश्वर ने Hallelujah. उस जमाने में टूटे दिल के लोगों को चंगा किया, Yes. तो आज भी वो टूटे दिल के लोगों को चंगा करेगा। Today, if your heart is bleeding, the Lord is healing you right now. आज आपका दिल लहूलुहान है, तो परमेश्वर से चंगा कर रहा है इस In वक्त। the name of Jesus. यीशु के नाम। In the name of Jesus. यीशु के नाम The में। Bible says बाइबल कहती है in Malachi 3:6, मलाकी का तीसरा I am the Lord and I do not change. मैं प्रभु बदलता नहीं हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Raise your hand and shout a big hallelujah. अपने हाथ ऊपर उठा चिल्ला हालेलुया। Malachi 3:6, I am the Lord and I do not change. मलाकी का तीसरा अध्याय छठवां वचन, मैं प्रभु यहोवा हूँ जो बदलता नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं भाई लोग बहन लोग? हाँ, Are you listening, church? क्या आप सुन रहे कलीसिया? You see, church, आप देखते कलीसिया? God is not changed. परमेश्वर बदला नहीं है, He's the same. वो वैसा ही है। Today, this evening, आज की शाम you may say, Pastor, शायद आप ऐसा पूछ रहे हो कि पासवान जी, yes, my heart is broken. हाँ मेरा दिल टूटा हुआ है, What should I do? ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? And before I go on, आगे बढ़ने से पहले I just want to tell you something that really happened. आपसे कुछ कहना चाहेंगे जो सचमुच हुआ। You know, there was this girl देखिए एक लड़की के बारे में बताते हैं who, attends one of our services. जो हमारी एक सभा में हिस्सा लिए, And she came to me and said, Pastor, I just want to die. और एक दिन आकर कहने लगी, पासवान जी बस मैं मरना चाहती हूँ। Her mother was standing next to her. उनकी माँ उनके बगल में खड़ी थी। I said, you are a decent looking woman, probably much educated. Why do you want to die? और इन्होंने कहा कि आप अच्छी खासी दिखने वाली महिला है, संभव है कि आपने पढ़ाई लिखाई भी अच्छी कर ली, तो आप मरना क्यों चाहती है? She says, yes, I work for a good corporate firm. I'm drawing a lakh of rupees. फिर वो I कहने said, लगी, wow, that's good. Why do you want to die? I said, I'll miss a good member in my church. और अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में मैं I tried to काम make a करती joke हूँ, out of अच्छे it, you लाखों कमाती भी हूँ, तो इन्होंने कहा अरे बहुत बढ़िया, तो आप मरना क्यों चाहती हो? She said, Pastor, फिर उन्होंने कहा पासवान जी, my mother and my father is taking me to see proposals that are coming from me. और मेरे माता पिता मुझे ले जा रहे ऐसे ऐसे जो प्रस्ताव मेरे लिए जो आते हैं शादी का प्रस्ताव उसको देखने के लिए। She says, I know I'm a good looking woman. Now that's a confident woman there. फिर आगे उन्होंने बताया, देखिए बड़े साहस का बताया, मैं जानती हूँ कि She मैं अच्छी says, दिखती I got a good salary. हूँ और मुझे अच्छी तनख्वाह भी And मिलती I है am an MBA. और मैंने MBA की पढ़ाई भी की है। Watch this. अब सुनिए। She said, but I don't want to live. I want to die. फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं जीना नहीं I said, चाहती हूँ, "Tell मरना me." चाहती हूँ।
And I sensed the root of rejection upon her life. और फिर इन्होंने महसूस किया कि ठुकराहट की जड़ का प्रकोप उसकी जिंदगी पर है. Now, sometimes God doesn't show a prophet everything. देख कभी कभी परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को सब कुछ नहीं दिखा देता. Come on now. Now, maybe for great prophets, God may show everything, but for me, I'm still learning. समझ के दूसरे जो महान भविष्यवक्ता को परमेश्वर तक कुछ दिखा देता होगा, लेकिन पासवान जी कह I make mistakes. गलतियां होती हैं. So I just told her, ma'am, I see a root of rejection in you. और इन्होंने उनसे कहा कि मैम देखिए मैं आपके अंदर ठुकराहट की जड़ को देख रहा हूँ. And she burst out crying. और फिर वो रो रो कर फुट पड़ी. And I said, ma'am, tell me, because the Lord is hidden this thing from me. और फिर उन्होंने कहा मैम बताइए कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इन चीजों को छिपा के रखा है. And she said, फिर उन्होंने कहा I have gone for 12 proposals and everyone rejected me for some silly reason. उन्होंने बताया कि 12 times. 12 बार ऐसे मेरे लिए प्रस्ताव आए थे. Pastor, कुछ मामूली कारणों से उन्होंने मुझे ठुकराया. maybe I shouldn't be getting married. फिर उन्होंने कहा कि पासवान जी शायद मुझे शादी नहीं करनी चाहिए. Don't you think so? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? I said, I don't know. इन्होंने कहा मुझे नहीं And पता. she says, now my mother tells me, come for the 13th one. और फिर आगे कहने लगी कि अब मेरी माँ मुझसे कह रही कि 13वें प्रस्ताव के लिए जाएंगे चलो. Hello. How many young people identify what I'm saying? कितने नौजवान लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? You can be young at heart and raise your hand also. आप अपने दिल के नौजवान हो सकते हैं तो भी आप अपने हाथ उठा सकते हैं. Come on now. चलिए. And I felt so pained when I heard that. और जब इस बात को इन्होंने सुना तो इनके दिल में एकदम दर्द जाग उठा. I understood what she was going through. और समझ में आ रहा था कि किस दौर से वो गुजर रही And थी. she said, और फिर उन्होंने कहा Pastor, पासवान जी I'm broken. मैं टूट चुकी हूँ. Everybody sees me as a successful woman, a corporate girl who's achieving so many things, but I'm totally broken. What should I do? उन्होंने कहा कि हर कोई मुझे जानता है कि मैं अच्छी पढ़ी लिखी की अच्छी कमाती हूँ, अच्छी कामयाबी को मैंने पाया, लेकिन मैं टूटी हुई लड़की हूँ. अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? And we prayed, और फिर हमने प्रार्थना की and the Spirit of God came upon her. और प्रभु का आत्मा उन पर आया. I told you he's the same yesterday. आपको पता है कि वो पहले जैसा ही है. And I told her, और उन्होंने कहा now go for the 13th one. अब 13वें प्रस्ताव के लिए जाओ. And she says, because you're saying I'm going. फिर उन्होंने कहा क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए मैं जा रही हूँ. At that time, I felt like jumping actually. Hello, are you there right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? Yes. I said, God, do something. उन्होंने कहा परमेश्वर कुछ तो कर. And she came back next Sunday. और फिर अगले रविवार को She was वापस sitting in the congregation और मंडली में आके बैठी हुई थी. and her face was beaming. और उसका चेहरा चमक रहा था. चमक रहा था. Beaming like a floodlight. एकदम उज्जाले से चमक रहा था. I thought, God have mercy. I don't want to meet this lady now. Come on, pastors are human beings, man. Praise the Lord. Pastors भी लोग. मैं ग्रीन रूम से भागने की कोशिश कर रहा था. बोले इसको नहीं मिलना है. 13 में जा चुकी है, कुछ लफड़े वफड़े करेगी. Hello, are you there? Well, she somehow managed to slip through our great people over here. खैर हमारे जो बड़े-बड़े जो And says, Pastor, I want to give you the good news. और आखिर के लिए पासवान जी आपको एक अच्छी खबर मैं सुनाना I चाहती हूँ. felt like on top of Rangsharda. Hallelujah. और ऐसा इनको लगा कि जैसे रंगशाला की चोटी पर एकदम ऊपर पहुंच गए. You know, aerial होता था ना उस टाइम टीवी का aerial ऐसा लग रहा था. And she said, Pastor, I went to meet this man. और उन्होंने बताया कि पासवान जी मैं इस आदमी से मिलने गई. And he happened to be studying in the same school where I was studying. और पता चला कि वो भी वहीं पढ़े उसी स्कूल में जहाँ पे मैंने पढ़ाई की. Already somebody is receiving hope now. कोई तो अपनी आशा को पा रहा है इस वक्त. And she says, we connected. और फिर आगे उन्होंने बताया कि हम जुड़ गए. And we started talking to each और other. हम एक दूसरे से बातचीत भी करने लगे. And we are jabbering for hours. और घंटों हद की हमारी बातचीत होने लगी. You see, that day, और देखते उस दिन God healed a young 27-year-old girl. परमेश्वर ने एक 27 साल के नौजवान लड़की को चंगा किया. Today they are married. आज उनकी शादी हो चुकी है. Jesus is in the business of healing broken hearts. और यीशु टूटे दिल Hallelujah. को चंगा करने के व्यवसाय में Lift your लगा hands हुआ and give him a clap offering right now. है. He's Lord. वो प्रभु है. God can heal your broken heart. परमेश्वर आपके टूटे दिल को चंगा कर सकता है. How many of you listening right ये तो now? सुन रहे हैं इस वक्त. Now everybody's story is not so glamorous and beautiful as this. और देखिए हर एक की कहानी देखिए जैसे ऐसा एकदम चकाचौंध वाली एकदम खूबसूरत ऐसे नहीं होती. How many of you following me what I'm ये तो saying? समझ रहे हैं इस वक्त. This is a good story. ये एक अच्छी कहानी है. But I want to tell you one more thing and we will go into the word again. लेकिन और एक चीज बता के आपको फिर से हम वचन में जाएंगे. There was this man, I don't want to name him whether he's in the ministry. You know how people are, they immediately do a scan. कौन है रे वो, कौन है रे वो, कौन है ये लोग वो? कैसे होता है जब उनको सामने नाम आजकल के मसीह लोग है ना वीडियो भी देखते हैं. बोले कौन देखेंगे पास्टर के.
इसका पब्लिक बहुत भारी है भाई. There was this guy whom I met, एक व्यक्ति के and बारे he में used to बता रहा attend the services. और वो हमारी सभाओं में आके हिस्सा लेते थे. You know, बार-बार आता था. So we used to tell him, तो उसे कहते थे, hey, come now, come, say the prayer, you know, अरे आगे offering आओ. prayer. You know, come on now, hello, are you there right now? Pastors लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कोई चीज किसी को कोई चल तू ये कर. I'm like that. Okay. So I should tell him, come. I should, no. तो कहते नहीं. अरे मैं बोला ऑफरिंग थोड़ी मांग रहा हूँ यार, काम कर थोड़ा सा. कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड. पब्लिक ऑफरिंग डरने से बहुत डरती है, नो. सुनिए, नहीं कुछ भी बोलो, ऑफरिंग भी ले. अरे बोला भैया ऑफरिंग दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आगे स्टेज पे. पब्लिक स्टेज के लिए कुछ भी करेगी भाई लोग. प्रेज द लॉर्ड. हेलो, आर यू देयर राइट नाउ? बोले फोटो भी आएगा यार. सब फोटो नहीं, कुछ नहीं चाहिए. टेरिफाइड, पेट्रिफाइड, यहां तक कि बोले तू स्टेज पे बुलाएगा ना पास्टर तो मैं आएगा ही नहीं. बोले ये क्या बात है? And then I spoke to his brother. फिर उनके भाई से इन्होंने बात की. His elder brother. उनके बड़े भाई Now से. here's the thing. Please अब सुनिए, listen, because in this is hidden your deliverance. क्योंकि इसमें आपका छुटकारा छिपा हुआ है. Please listen. सुनिए. ध्यान से सुने इस वक्त. He says when this guy was a young boy, उन्होंने बताया कि जब ये एक नौजवान लड़का था, he was very bold. बहुत ही हिम्मत वाला था. Have you seen children? क्या आपने देखा बच्चों को? Some dance is going on. They'll go inside and they'll start dancing. कुछ डांस चल रहा होगा तो वो अंदर घुस आएंगे और डांस करेंगे. Come on. And you're like, praise God, ये मेरा ही बच्चा है ना? Actually, you were also like that. दरअसल आप भी वैसे थे. You see? आप देखते हैं, Very bold. बहुत ही हिम्मत वाला. And he took part, his elder brother told me, he took part in a competition. और उनके बड़े भाई ने बताया कि एक प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया. And he was a lead guy. और वो मुख्य व्यक्ति थे उसमें. Very cute. He showed me the photographs of that event. और उस इवेंट का तस्वीर भी दिखाया गया. When I was in Pune. तो पासवान जी पुणे में थे. Listen to this. सुनिए इसे. I'm seriously telling you this. This is not a made up story. कोई बनाई हुई कहानी नहीं है. And he said, Pastor, और वो कहने लगे, पासवान जी, the curtains fell down. पर्दा गिर गया. And he was so engrossed और एकदम मगर उस पर डूब गए थे वो that the curtain has fallen behind him कि पर्दा उसके पीछे गिरा and he's still doing his things. और वो अपने चीजों कर रहा था. And the people thought it was funny और लोग ने सोचा अरे ये सब मजाकिया हो रहा है, because they saw a cute little boy. क्योंकि उन्होंने देखा एक अच्छा सा कोमल सा बच्चा. So the people started laughing. तो लोग हंसने लग गए. And the people started laughing. और लोग हंसने लगे. He came to his senses और जब उसे होश आया and he turned back. और पीछे मुड़ा The curtain was closed. और पर्दा बंद हो चुका था. And he tried to, small boy, और छोटा सा trying बच्चा to open the curtain. और पर्दे को उठाने खोलने की He कोशिश cannot कर open. और नहीं कर पाया. He's running helter skelter. यहाँ वहाँ भाग दौड़ करने And the people think it is funny. और लोगों ने सोचा अरे बड़ा मजा आ रहा है They start laughing more. और ज्यादा वो हंसने लग गए He starts screaming. और वो चिल्लाने लगा And they think it is funny. और वो लोग सोचते हैं और भी मजा आ रहा है. Until one teacher came up and picked him up. और एक टीचर आकर उसे उठा ली And from that day onwards, और उस दिन से he never went on the stage. कभी वो मंच पर दोबारा नहीं गया. This is the truth. ये सच्चाई है. Many of you, आप में से बहुत सारे something happened in your life कुछ तो आपकी जिंदगी में हुआ and you're carrying those wounds. और उन घावों को आप लिए हुए हैं. That's affected your marriage. इसका असर आपकी शादी पर हुआ. That's affected every part of your life. आपके जिंदगी के हर एक हिस्से पर इसका असर हुआ है. I want to tell you the good news. आपको अच्छी खबर बताना चाहते हैं. There is healing in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगाई है. There's healing in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगाई है. Hallelujah. हालेलुया. Somebody abused you when you were a child. जब आप- Till now, बच्चे थे तभी किसी ने आपका शोषण किया लेकिन अभी तक you cannot overcome it. आप उस पर जय नहीं पा As a सके. pastor, I've encountered over these 26 years, I've encountered all these things. एक pastor लोगों ने मुझे मुझे ऐसे ऐसे खत लिखे हैं. Today I want to tell you, आज आपसे कहना चाहते हैं that's why people cannot come together as husband and wife. People cannot operate. Their personalities are marred. और इसी वजह से देखिए लोग जो हैं देखिए एक पति पत्नी के रूप में देखिए वो आगे आकर आप काम नहीं कर पाते हैं. देखिए उनका पर्सनालिटी उनकी पूरी जो व्यक्तित्व बिगड़ चुका है. क्या आप लोगों ने देखा है कि जब तक एक आदमी को अकेले काम दो वो बिंदास काम करेगा, बहुत होशियारी से काम करेगा. कोई लोग टीम में काम नहीं कर सकते हैं. कितने लोग जानते हैं? उनको एक काम दो, बोलो तू वहां जा, बोले पहाड़ पे चढ़, नीचे जा, सुरंग खोद, सब कुछ करेंगे. लेकिन जब वो उनको टीम में डालेंगे वहां पर गड़बड़ हो जाएगी. Have you seen people of God? Maybe you are that person. अगर तुमने देखा नहीं तो आप ही वो. शायद हो सकता अगर आपने देखा नहीं तो आप ही होंगे वो व्यक्ति.
I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं। आप हमेशा सोचते हो कि दूसरे का फॉल्ट है, तीसरे का फॉल्ट है, चौथे का फॉल्ट है, पास्टर ऐसा है, वो है, वो इधर है, भटकते रहते हैं ऐसे लोग। Today I want to share with you that the Lord will heal you today. आज आपसे ये बात साझा कर रहे हैं क्योंकि प्रभु आपको चंगा करेगा। Lift your hands today. आज अपने हाथ उठाएं दोनों हाथों को उठाएं and say, Lord, open my eyes. और कहें प्रभु मेरी आंखें खोल दे, Open my मेरे ears कानों को खोल दे, to hear what the Spirit जो says. आत्मा कहता है उसे सुनने के लिए। Heal me, O God, मुझे चंगा कर प्रभु, and I will be healed. और मैं चंगा हो जाऊंगा In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Somebody shout a big hallelujah. कोई तो जोर से चिल्लाए हालेलुया। The first thing, Pastor, चीज। can I be healed? पासवान जी क्या मुझे चंगाई मिल सकती है? Here we go. चलिए आगे। The first one. पहला है How do I receive my healing? कैसे मैं अपनी चंगाई पा Please सकता हूँ? note it down. शायद आपको अभी की गरज नहीं है। कभी कोई लोग सोचते हैं, अरे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं तो चंगा हूं यार। नहीं सर, सभी को, मैं भी ऐसे ही सोचता था। एक दिन जो उपवास और प्रार्थना में बैठा था, खुदा ने मेरे घावों के बारे में बताया, बहुत रोने लगा। ध्यान से सुने इस वक्त। What is the way you can receive healing? और सिर्फ ये मैसेज जो है यहाँ तक सीमित मत रखो। घर जाने के बाद इसको अपने पर्सनल डिवोशन में, पर्सनल टाइम में इसे वापस खोलो और उस पॉइंट्स में जाओ और 7 दिनों के लिए आप ये करो। याद रखो, जो बाहर निकलेगा 7 दिन के बाद वो एक अलग आदमी होगा, एक अलग पुरुष, एक अलग स्त्री होगी। कोई तो सुन रहा मैं क्या कह रहा हूँ? I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। The first one, पहला है see yourself as God sees you. अपने आप को वैसा देखें जैसा परमेश्वर देखता है। You see, God sees you differently. देखिए परमेश्वर आपको बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। You know, when God came to meet Gideon, देखिए जब परमेश्वर गिदौन से मिलने आया, he was so fearful. वो बहुत ही डरा हुआ था। He had taken wheat and he was threshing it in the wine press. और देखिए वो गेहूं को लेकर देखिए वहां पर दाखमधु को जहाँ झाड़ा था वहां But पर when झाड़ा। God came to him, परमेश्वर आया उसके पास। you know what he said? अब जानते क्या कहा? अगर हम लोग बोलते क्या रे डरपोक क्या कर रहा है, हम लोग ऐसे बोलते थे, come on yes or no? क्या रे छुप के इधर क्या कर रहा है, डरपोक बाहर निकल, मैं तुझे गुड न्यूज देने आया हूं। ऐसा नहीं मत किया। खुदा ने उसे कहा, ओ माइटी मैन ऑफ वैलर। परमेश्वर ने उससे कहा, हे शूरवीर सुरमा। Look at somebody and say, oh you mighty person of valor. Hallelujah. Please look at somebody and prophesy. किसी को देखकर भविष्यवाणी करें। If it's your wife, then you should speak twice. अगर आपकी पत्नी है तो 2 बार आपको बोलना चाहिए। Come on now. और आपका पति है तो 3 बार बोलो यार। Come on now. Praise the Lord. Look at how heaven greets this person. और देखिए कैसे स्वर्ग जो है इस व्यक्ति को अभिवादन करता है। The man is scared. और वो इंसान डरा हुआ है। The man is shaken. वो पूरी तरह से कांप रहा है। But God says to him, और परमेश्वर से कहता है, oh you mighty man of valor. हे शूरवीर सुरमा। And Gideon must have said, कौन है भाई? और गिदोन ने कहा, अरे कौन है? And heaven must have said, you. और स्वर्ग ने कहा होगा तुम। Come on, praise the Lord. I said, praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो। Look at Daniel. दानियल को देखें। The angel Gabriel comes to him स्वर्गदूत जिब्राइल उसके पास आता and he है। says, oh greatly beloved man of God. परमेश्वर कहता है, हे अति प्रिय। बोले मैं greatly beloved, मेरे तो बाप और माँ के पता नहीं है मुझे, मैं तो एक ऑर्फन हूँ भाई, मैं तो एक लावारिस हूँ, अनाथ हूँ। लेकिन खुदा ने उसे कहा, तू अनाथ नहीं है, तू लावारिस नहीं है, You are greatly beloved. Hallelujah. तू अति प्रिय है। तू सोच रहा कि सभी ने तुझे त्यागा हुआ है, लेकिन तू त्यागा हुआ नहीं, तू greatly beloved है। और देखिए तूने सोचा कि सब लोगों ने त्यागा है, लेकिन तुझे त्यागा हुआ नहीं, तू अति प्रिय है। You know, many women think that there's nobody for them. Many men think there's nobody for them. देखिए बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि कोई उनका नहीं है। बहुत सारे पुरुष लोग ऐसा सोचते हैं कोई उनके लिए नहीं है। Oh, I wish somebody who could help me. ओ काश कोई मेरे साथ होता जो मेरी मदद करता। The heaven speak to you today. स्वर्ग आज आपसे बात कर रहा You है। are greatly beloved in the eyes of God. परमेश्वर की नजर में आप बहुत ही प्यारे हैं। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Many people write to me बहुत सारे लोग लिखते हैं and they say, Pastor, और कहते हैं पासवान जी मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे लिए कोई नहीं है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? You know, एक यंग आदमी ने मुझे खत लिखा और कहा, पास्टर साहब मेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है, मेरे पीछे बैकअप कोई नहीं है। मैंने बोला तूने बाइबल पढ़ा है? यीशु मसीह तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, आगे बढ़। Look at heaven how he sees you. और स्वर्ग को देखे कैसे वो आपको दिखता How है, it sees you. कैसे आपको दिखता है। Look at somebody and say you're not alone. किसी को देखकर कहे आप अकेले नहीं Come हैं। on everybody, say you're not alone. आप अकेले नहीं हैं। How many of you say an amen to that? किसी लोग कहते हैं आमीन इसके लिए। Hallelujah. Hallelujah. You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। The Lord is with you. वो आपके साथ है। Somebody raise your hand and shout an amen somebody. कोई तो अपने हाथ चिल्लाए आमीन इस वक्त। Yes. जी हाँ।
The first thing to receive your deliverance or receive your healing from these wounds is to see yourself the way God sees you. और देखिए सबसे पहली चीज आपको छुटकारा पाने के लिए, अपने इस घाव से चंगाई पाने के लिए वो ये है कि जिस तरह से परमेश्वर आपको देखता है, आप अपने आप को देखें। Lift your hands and say, Holy Spirit, अपने हाथ रखकर कहें, पवित्र आत्मा, open my eyes मेरी आंखें खोल दे, to see the way God sees me. देखने के लिए कि किस तरीके से परमेश्वर मुझे देखता In है, the name of Jesus. यीशु के नाम में। You know, कोई लोग पीछे क्यों हटते हैं पता है? वो बोलते हैं यार मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। अगर थोड़ा सपोर्ट होता ना, देख मैं क्या करता था। सर, मनुष्य के सपोर्ट के लिए इंतजार मत करो, स्वर्ग तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा है। I want to tell you, आगे बढ़ो, go into that purpose in Jesus name. आपसे कहना चाहते हैं, आगे बढ़ो, उस उद्देश्य के लाके जाएं। I want to tell the young people, नौजवान लोगों से कहना चाहते ऐसा मत बोलो मेरा बाप कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो क्या हुआ? आप एक कदम तो डालो, खुदा तुम्हारे साथ चलेगा। हालेलुया। I want to encourage you, go for it. हैं, आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ें, Don't step back. पीछे मत हटें। When I started the ministry, जब पासवान जी ने सेवकाई शुरू I की, had these thoughts. इनमें भी ये विचार था। I started looking at my background अपने पृष्ठभूमि को देखने लगे, and said, my father is a garage mechanic. और मेरे पिताजी तो गैरेज में मैकेनिक My mama is not even studied properly. और मेरी माँ ने तो अच्छी पढ़ाई भी नहीं की है। But then one day, लेकिन फिर एक the दिन Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, don't look at your background. अपनी पृष्ठभूमि को मत देखो, Look at your heavenly अपने inheritance. स्वर्गीय विरासत को देखो। You see, that's why you need to get into the word. और देखिए इसी वजह से आपको वचन में जाने की जरूरत Maybe you have neglected the word. है। शायद हो सकता है आपने वचन को नजरअंदाज मैं किया पढ़ा हो। लिखा नहीं हूँ, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ। छोड़ना यार, ये सब बातों को छोड़ दे तू। तेरे पैर काम कर रहे हैं ना, तेरे हाथ काम कर रहे हैं ना, खुदा तुझे यूज करेगा। आगे बढ़, आगे बढ़। I want to tell you, church. I want to tell the young girls. I want to tell the boys. I want to tell the men. नौजवान लड़के लड़कियों से कहना चाहते हैं, जो स्त्री पुरुष सभी से कहना See चाहते yourself the way God sees you. हैं, अपने आप को वैसा देखे जैसा परमेश्वर दिखता है। Come on, praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। नहीं, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। मूसा ने 80 साल में सेवकाई शुरू की। शायद प्रभु तुम्हारे द्वारा भी बहुत बड़े काम करने वाला है। खुदा के अभिषेक की प्रार्थना करो। ऐसा मत बोलो मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, झोपड़पट्टी में से बड़े बड़े खुद लोग उठे हुए हैं। See yourself the way God sees you. अपने आप को वैसा देखे जैसे परमेश्वर देखता है। Go to Romans chapter 5. Let's get the scripture. रोमी की पत्री 5वां अध्याय में जाएंगे। Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates his love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. You see, God doesn't see you as a sinner. देखिए परमेश्वर आपको पापी के रूप में नहीं देखता। He sees you through the lens of the sacrifice of his son. देखिए वो आपको यीशु जो उसका पुत्र था उसके बलिदान के लेंस से देखता है। Come on now, somebody say hallelujah. Ria beta, can I have your glasses? Can I have your glasses? I couldn't ask. Don't worry. You see how God sees you अब देखते हैं कैसे परमेश्वर आपको देखता है, is through the sacrifice of और Jesus. यीशु के बलिदान के। ऐसा देखेगा तो sinner, ऐसा दिखेगा तो righteous. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ऐसा देखता था, न्यू टेस्टामेंट में खुदा यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के द्वारा देखता है। लोग बोलता है ये पापी है, बोलता है ये मेरा बच्चा है। That's the way God sees you. यही तरीका, इसी Thank you, तरीके से परमेश्वर आपको देखता है। May God heal your eyes completely. मैं सच बोल रहा हूं, खुदा जब आपको देखता ना यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के लेंस के द्वारा देखता है, बोलता है बेटा तूने गलती की है लेकिन यीशु मसीह ने तुम्हारा दाम चुकाया है, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। Don't fall back. पीछे ना हटना, Don't fall back. पीछे मत हटो, Rise up. ऊंचा उठो। अगर आप गिर रहे हो ना तो खुदा से बोला प्रभु जरा और एक बार हाथ देना ना प्लीज। See yourself. अपने आप को देखो। Said everyone, I will see myself तो मैंने कहा मैं अपने आप को देखूंगा as the way God sees me. जैसा परमेश्वर मुझे देखता है। You know, some of you had a bad relationship with somebody. और देखिए, आप में से कुछ That लोगों को- relationship didn't work out. और किसी के साथ देखिए बुरा अनुभव आपने पाया और वो संबंध जो है अच्छे से काम नहीं कर You पाया। failed in your college. You failed in your whatever assignment. I want to tell you, you're not a failure. God says you're a success. कॉलेज में या असाइनमेंट में अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर है, नाकाम है, नहीं, परमेश्वर आपको एक कामयाब व्यक्ति के रूप में देखता है। Praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। Said everyone, Lord help me सभी लोग कहे प्रभु मेरी मदद to see the way you see me. कर। वैसा देखने के लिए जैसा तू मुझे देखता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Come on, जोर से बोलिए praise the Lord. The second thing,
दूसरी चीज, Is this blessing you? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? Is this blessing you? आपको आशीष पहुंचा। The second thing, दूसरी चीज, every day देखिए हर दिन you will hear some voices. आप कुछ आवाजों को सुनेंगे। बाजू वाले को बोलो voices. अपने पड़ोस को बोलिए आवाजें। You will hear some voices. आप कुछ आवाजों को सुनेंगे। तुझे काही नाही होणार आहे. तेरा कुछ नहीं होगा। कौन बोला? किसने बोला? तुझे काही नाही होणार आहे. तेरा कुछ नहीं होगा, तू अशीच जाणार आहेस. तू ऐसे ही जाएगी। And you start beginning to believe those voices. और फिर उन आवाजों को आप यकीन मानने लगते, विश्वास करने तू लगते। कभी आगे नहीं बढ़ेगा. तू कितना भी प्रार्थना कर. कौन बोला? You see, these are voices. देखिए ये सब आवाजें हैं। And there are many people, you begin to believe those voices. और देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को, इन आवाजों में विश्वास करने लग जाते हैं। तेरी शादी कभी ठीक नहीं होगी यार. उसकी शादी देख, तेरी शादी देख, कच्चरा तेरी शादी. You begin to believe these voices. आप इन आवाजों में विश्वास करने लग जाते हैं। तुला कधीच मूल नाही होणार आहे. कोण बोलला? तुझे कभी बच्चा नहीं होगा। प्रार्थना में तू पापी आहे, जास्त ढोंग करू नकोस, उठ. तू पापी आहे, पापी. इथे संत कोण आहे? कोणच नाही आहे. यीशु के लहू के द्वारा हम साफ हुए हैं. सुन रहे हो मेरी बात सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? तेरा बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा. ये वॉइसेस जो है आपको आएंगे. These voices will come. और देखिए ये आवाजें आपके पास आएंगी। तेरा घर कभी उद्धार नहीं पाएगा. तू लाख प्रार्थना कर, कुछ नहीं होने वाला तेरा. These voices will come. ये आवाजें आएंगी। These are the voices of the devil. और ये सब आवाजें शैतान की हैं। The Lord called him the father of lies. और प्रभु ने उसे नाम दिया झूठ का पिता। किसका पिता? झूठ का पिता. These voices come. There was a woman who came to our church. Every time she used to carry a baby. और देखिए एक महिला जो हमारी कलीसिया में आती थी, देखिए हर बार जब बच्चे को उसको गर्भ धारण करती, She used to travel from Virar to Churchgate. She's a government servant. और देखिए सरकारी विभाग में कार्यशील थी, विरार से चर्चगेट के लिए She used to hear a voice, Pastor Purushottam. She used to hear a voice. वो आवाज सुनती, Jump. कूद जाओ। एक बार वो ट्रेन के फुटबोर्ड तक गई, किसी ने उसको खींच लिया. बोले पागल होगी क्या? बोले आवाज आ रही है खुद. बोले तो आवाज को क्यों सुन रही है? This is real. These voices are real. ये असलियत में आने वाली आवाजें हैं। That's why people stop praying. That's why people stop loving their family. इसलिए लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, अपने परिवार से प्रेम करना और बंद कर देते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? बोले तेरा परिवार को कुछ नहीं हो गया, जा निकल जा, तू दारू पी जा. ऐसी आवाजों को सुनते हैं वो. कितने लोगों को ऐसी आवाजें बात करती हैं? हाथ उठाइए. घबराओ नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसी आवाजें बात करती हैं. और जो लोग, बहुत सारे लोग अच्छे लोग बैठे हैं, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, डरो मत. These are the voices that speak. ये वो आवाजें जो बोलती हैं। They even speak to educated people. They even speak to pastors. और पढ़े लिखों से भी बोलती हैं, पासवानों से भी बोलती The हैं। church will never grow. ये लोग कभी नहीं बदलेंगे. ये लोग ये देख ये लोग देख, इतना तू करता है, देख कैसे करते तो ये लोग कभी नहीं बदलेंगे. इतना उपवास किया तूने, इतना सब कुछ, क्या मिला? देखा? कभी नहीं बदलेंगे ये लोग. These are the voices. ये आवाजें हैं। How many of you listening right now? ये जो सुन रहे हैं इस वक्त, These are the voices of the devil. शैतान की आवाजें हैं ये। And one of the things that you need to do और एक चीज जिसको आपको करने की जरूरत है, is you need to speak louder than that voice. उस आवाज से भी ऊंची आवाज में आपको बोलना है। And you need to speak the word of God louder than that voice. उस आवाज से ऊंची बुलंद आवाज में आपको परमेश्वर का वचन बोलना है। Your wife does not love you. Just go somewhere else. और देखिए वो आवाज आपसे बोलती है कि आप, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती, कहीं और चले जाओ। Your husband does not love you. तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। Look at Harry. हैरी को देखो। Now don't ask me who's Harry. अब ये मत पूछना हैरी कौन है। Jesus. If your name is Harry, अगर आपका नाम हैरी है तो I'm not referring to you. आपको, आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। Pastor मुझे ही बात किया. अपने word of name में, ये word of knowledge नहीं, example है. हैरी तुझसे कितना प्रेम करता है, वो तुझे ऑफिस के बाद मिलता है, इतना लविंग है, इतना काइंड है. ये शैतान की आवाज है. देखो कोई आमेन नहीं बोल रहा. भाई लोग, बहन लोग, लगता है हैरी बहुत अंदर आ चुका है. सच बोल रहा हूं सर. दिस इज द वॉइसेस आर हर्ड बाय मेन. और ये ऐसी आवाज है जिनको लोग सुनते हैं। तेरी वाइफ तेरे साथ बैठती है क्या?
बात करती है क्या? वो तो तेरे साथ बैठती है रोज, ऑफिस के बाद तो 1.5 घंटा बैठती है। कितना लविंग है देख वो। और तेरी बीवी खाली बिल्स के बारे में पूछती है। राजेश, डोंट से मैं ना, आई ले हैंड्स ऑन यू। हाँ, मैं देख रहा हूं कौन आमेन बोल रहा है। हाँ, हाउ डू यू काउंटर दिस वॉइसेस? कैसे आप उन आवाजों को, एवरी वुमन गेट्स टेम्प्टेड बाय दिस वॉइसेस। देखिए हर एक महिला जो है, देखिए इन आवाजों के द्वारा परेशान एवरी पड़ती है। मैन गेट्स टेम्प्टेड बाय दिस वॉइसेस। हर मर्द जो है उनको भी इन आवाजों की परेशान पड़ती Every young woman gets tempted by these है। voices. हर एक नौजवान महिला है जो इन आवाजों की परेशान पड़ती है। I want to tell you, sir. आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन। इधर देख, तुझे वो वर्ड ऑफ गॉड लेना पड़ेगा और उस आवाज से ज्यादा बड़े आवाज से बोलना पड़ेगा। अगर वो आवाज बोलती है कि तेरा घराना कभी उद्धार नहीं पाएगा, तो तू स्क्रिप्चर लेके बोलना है, मैंने विश्वास किया है इसलिए मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। वो आवाज फिर से कहेगी, देख तू इतनी प्रार्थना करता है, देख नालायकों को देख। बोले ये नालायक थे लेकिन यीशु के द्वारा लायक बनाए गए हैं, मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। यू नीड टू स्पीक ब्रदर, यू नीड टू स्पीक सिस्टर। मेरे भाई मेरी बहन, आपको बोलने की जरूरत है। Somebody open your mouth, look at your neighbor and say speak brother, hallelujah। अपना मुख खोले, अपने भाई अपने पड़ोसी को देख करके बोलो मेरे भाई। कोई बोलता नहीं है, सब मुंह बंद करके रखते हैं। When David went to meet Goliath, जब दाऊद गया गोलियत से मिलने, you know what Goliath said? अब जब गोलियत ने कहा, बोले बच्चा है, इसको मैं फाड़ दूंगा, मेरे को ऐसा ऐसा करूंगा। डेविड ने नहीं बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डेविड ने ऐसा नहीं बोला। डेविड ने अपनी आवाज उठाकर बोले, तू तीर और भाले के साथ मेरे सामने आ रहा है, मैं तेरे विरुद्ध यीशु मसीह के नाम से, यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। डोंट शट अप, स्पीक स्पीक। चुप ना रहे, बोलिए बोलिएगा, स्पीक। बोलना है आपको। How many of you say amen to that? कहते हैं आमीन इसके लिए। Speak. बोलिए। एक आवाज आएगी, बोले ये तुम्हारा बिजनेस छोटा है, अरे मक्खी के समान तेरा बिजनेस है, उड़ जाएगा तेरा बिजनेस। उसको वो आवाज को बोलने का, हाँ मेरा बिजनेस छोटा है लेकिन यीशु मसीह इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसलिए मेरा बिजनेस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। आई वॉन्ट यू टू स्पीक ब्रदर, आई वॉन्ट यू टू स्पीक नाउ। आपको बोलना, अभी बोलिए। हालेलुया। कोई लड़की कह रही है मेरे स्ट्रेट बाल नहीं है, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूं, तो स्क्रिप्चर में जाके ढूंढो, वहां पे लिखा है कि लिया इतनी खूबसूरत नहीं थी लेकिन परमेश्वर के आशीष उस पर थे, 4 बेटे पैदा हुए उसके। हालेलुया। और उसमें से एक का नाम था जूडा। How many of you saying amen to that? किधर कहते हैं आमीन इसके लिए। It's not about the outer beauty. और बाहरी खूबसूरती के बारे में नहीं है। मीडिया ने हमको एकदम ये बना, ये क्रीम घसो तो तुम ब्यूटीफुल लगोगे। अरे भाई बोले 1 किलो तो 1 साल से घस रहा हूं मैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। इट्स नॉट दैट ब्यूटी। अरे ब्यूटी ब्यूटी क्या, अरे ब्यूटी एक लड़की ने खत लिखा हम लोगों। मैं बोला, उसने बोला मैंने इस लड़के को रिजेक्ट किया, वो इसके बाल नहीं है। अरे बाल आने को कितना टाइम लगता अभी, क्यों हंस रहे हो भाई? People reject people based on their, he's a good boy, oh my God, he's such a good man, अच्छा लड़का, अच्छा आदमी हो, he's a good man। अच्छा आदमी। तू बाल खाएगी क्या? वो बाल वाला ऐसे 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 करके कि दूसरे सब लोगों के पीछे जाएगा। बाल वाला चाहिए। आई नो थोड़ा ऑफरिंग लेना चाहिए था पहला, नहीं? ऐसा ठोकेंगे तो कोई ऑफरिंग देता नहीं है। बोले वो प्रीचर बहुत अच्छा था, कितना मलम ललम लगा के गया वो, ये इसको मत बुला वाशी में, बहुत ठोक के जाता हम लोगों को। ना सुनिए,
You have to speak the word. सिर्फ वचन जो है फेसबुक पे डालना जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप पे भेजना जरूरी नहीं है. वचन को ना, you have to speak the word. आपको वचन बोलने की जरूरत है. Lift your hands. अपने हाथ उठाएं. Say it after me. बोलिए. अगर आप बोल नहीं रहे ना तो सर शायद आप पॉल के बिछड़े भाई हो, है ना, या बिछड़ी बहन हो. हाथ उठाइए सभी लोग और बोलिए, the spirit of the Lord is upon me. और क्या प्रभु का आत्मा मुझ पर है. Say, the spirit of the Lord is upon me. क्या प्रभु का आत्मा मुझ पर है. I am not a failure. मैं नाकाम नहीं हूँ. I will fulfill the purposes of God. मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करूंगा. मैं परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम से. यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah. हालेलुया. When you start speaking like this, जब आप इस तरह से बोलना शुरू करते हैं, the wounds will be healed. घाव चंगे हो जाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. I want to tell the young children, No, you, बच्चों you से must कहना. always say, I can do all things through Christ who strengthens me. प्रभु मेरा भरोसा है. आपको हमेशा कहते रहना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. प्रभु मेरा भरोसा है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. प्रॉब्लम क्या है मैडम, कि तुम ज्यादा सुनते हो और विश्वास करते हो, लेकिन जब तुम बात नहीं करते, उस आवाज के विरोध बात करो. यीशु मसीह ने उस तूफान से भी बात किया. तूफान की आवाज थी, मार दूंगा तुझे, निकल जाऊंगा तुझे. यीशु मसीह ने बात किया, ए चुप बे, शलोम. हालेलुया. थम गया. लुक एट योर नेबर एंड से स्पीक. अपने पड़ोसी को देखकर कहें. नहीं नहीं, कोई तो देखो यार, किसी को तो देखो. पड़ोसी को देखो. ये लोग किधर किधर कुछ कुछ देखते हैं, 4-4 घंटे इधर उधर देखते हैं. मुझे देखो इस वक्त. Everyone says speak. सब लोग कहें बोलो. Do you know these people? I don't want to take their names. उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे. They starts with O and W. And win. You know, they get up in the morning. वो देखिए सुबह उठते They हैं, go before the mirror आईने के सामने जाते हैं, and they look at that person उस व्यक्ति को देखते हैं and they say, "You are a beautiful person. और कहते हैं कि तुम खूबसूरत व्यक्ति You हो. will fulfill your purpose." तुम अपने उद्देश्य को पूरा करोगे. और मैंने देखा, बोले Anthony Robbins, so many people, they have something called affirmations. What देखिए they have called? affirmation नाम का कुछ होता है. Say it after me in English. Affirmations. Affirmations मतलब वो खुद से बात करते हैं. सब जो वो लोग खुद बात करते हैं. अब लोगों ने बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को, मैं ना प्लेन चलाऊंगा ना, मतलब प्लेन ऐसा उड़ेगा ना, उड़ेगा. Now what happens is, क्या होता है? the point is, मामला ये, you never talk. आप कभी बोलते नहीं है, You only listen. आप सिर्फ सुनते रहते हैं. और वो जो दर्द है वो फटने लगता है. ध्यान से सुने. That's why इसलिए you cannot become a blessing to others. आप दूसरों के लिए आशीष नहीं बन पाते. एक मिनट में तुमको गुस्सा चढ़ता है, एक मिनट में तुम टंग्स में बात कर रहे हो, शकरा बारा बारा बारा. अरे बोले अभी टंग्स में बात कर रहा था, इसको ये कड़क कैसा हो गया अभी. बोले 7 दिन के उपवास में गया, वापस भड़क गया. रिक्शा वाला जाएगा, वाशी जाएगा ना. और लोग तुम्हारे बोलते हैं, तू प्रेयर में जाता है, ऐसा क्यों करता है. खुद हैरान हो यार, तुम क्यों ऐसा करते हो. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी भाषा को. आज आपकी हैरानी दूर करता हूं मैं आज. Affirmations. Everyone say affirmations. खुद से बोलते रहना. अपने हाथों को उठाकर बोलो, Jesus is my provider. I shall never be poor. My children shall never beg. In the name of Jesus, I shall have more than enough. All my needs will be met. ये affirmations आपको बोलना है. सर आप बोलते हो क्या? हाँ. I'm teaching you. This is called confessing the word. और ये कहलाता है वचन का अंगीकार करना. Bible says if you believe in your heart and speak with your mouth. Everyone says speak with your mouth. सब लोग मुंह से बोलना. Speak. Everyone says speak. सब लोग बोलना. जोर से बोलिए speak. वो होगा. जोर से बोलो होगा. अपने हाथों को उठाकर बोलिए, मेरे हाथों के काम आशीषित हो जाएंगे. मेरे हाथों के काम आशीषित हो जाएंगे. मेरे हाथों के काम यीशु को महिमा लेकर आएंगे. मेरे हाथों के काम यीशु को महिमा लेकर आएंगे. अपने हाथों को उठाकर बोल, ये हाथ, बोले ये हाथ, ये आशीषित हाथ है. आशीषित हाथ है. Hallelujah. हालेलुया. Prophesy over your hands. Speak over your hands. Speak over your hands. In the name of Jesus. Somebody give Jesus a clap offering and say hallelujah. हालेलुया. Glory to यीशु Jesus. को महिमा मिले. अभी देखो ताली कैसे बज रही है.
Amen. बोले मेरे घाव चंगा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen.